السلام علیکم ناظرین، سی نیوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں شمسہ کول۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سندھ کو گیس فراہمی کے معاملے کو گول کر کے کہا کہ سندھ حکومت نے عوام کو مایوس کیا اور ان کی امیدوں پر پانی پھیرا، مگر اب حالات بدل گئے۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈاکو راج تھا، انہیں ختم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر کہا کہ گیس پر پہلا حق سندھ کا ہے، وہ سندھ کو گیس فراہم کر کے ہی دم لیں گے۔ مخالف آئین پڑھ لیں، وزیر اعظم کو عوام سے ہمدردی ہے تو سہوندیاں ہیں۔ چیئرمین سینیٹ اظہر ربانی نے وزراء کی عدم موجودگی پر احتجاجاً کام کرنا بند کر دیا اور سرکاری پروٹوکول بھی واپس کر دیا۔ انہوں نے سیکریٹریٹ کو ہدایت کی کہ کوئی سرکاری فعال مجھ تک نہ لائی جائے، میں اب چیئرمین نہیں ہوں۔ مسلم لیگ نون، ANP اور MKM کے سینیٹرز نے چیئرمین سینیٹ کے اقدام کو درست قرار دے دیا۔ راجہ ظفر الحق نے کہا ہے کہ رضا ربانی کی وجہ سے سینیٹ کا وقار بڑھا ہے۔ سینیٹ اجلاس میں سوالوں کے جوابات نہ ملنے اور وزراء کی مسلسل غیر موجودگی کے خلاف چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے اجلاس غیر مبینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے اجلاس میں وقفہ سوالات مؤخر کرنے پر MKM اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا، اجلاس پیر تک ملتوی۔ IG سندھ AD خواجہ نے کہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ حکومت سندھ ان سے کیوں ناراض ہے۔ DIG ٹریفک میری مرضی کے بغیر لگا دیا گیا، کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ اختیارات کا ہے۔ رائے جنرل بھوشن جادو کے خلاف چارج شیٹ اور فیصلے کی تفصیل مانگ لی۔ سیکریٹریٹ خارجہ سے ملاقات، بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمبا والے نے کونسل رسائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ حقیقی واقعے کے گرد گھومتی ایکشن اور سسپینس سے بھرپور برٹش فلم 6 Days کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے عوام کو مایوس کیا اور ان کی امیدوں پر پانی پھیرا، مگر اب حالات بدل گئے ہیں۔ ووٹ صرف نعروں سے نہیں، کچھ کرنے سے ملیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جیکب آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جیکب آباد کے لیے 1 ارب روپے کے پیکج کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی حکومت نے آپ کو مایوس کیا ہے، یقین دلاتا ہوں کہ اب حالات بدلیں گے۔ کچھ آس امید لے کر آئے ہیں اور جو میں جذبہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، اس جذبے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی حکومت نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ اگر مایوس نہ کیا ہوتا تو دن کے 1 بجے اتنی بڑی تعداد میں نہ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوتی، نہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوتے، نہ میرے بزرگ بیٹھے ہوتے۔ اتنی گرمی میں آپ اتنے جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنی تالیاں بجا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حالات بدلیں گے اب، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ میرا صرف سوال ہے، سندھ کی حکومت سے سوال ہے کہ ان بھائیوں اور بہنوں کا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ ان کی امیدوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا، ان کا کچھ تو سنوارا ہوتا۔ یہاں سڑکیں دی ہوتی، اسکول دے دیے جاتے، ہسپتال بنتے، یہاں پر ترقی کا پہیہ یہاں پہ بھی چلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اسلم اپنوں مجھے بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر ہیپیٹائٹس B جو ہے اگر کسی جگہ پر ہے تو اس کا نام ہے جیکب آباد۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اس زمانے میں یہ حال ہے۔ دنیا 21ویں صدی میں کتنا آگے نکل گئی ہے، اور جیکب آباد وہی جو آج سے 100 سال پہلے والا جیکب آباد تھا، آج بھی وہی جیکب آباد ہے یا نہیں ہے؟ 100 سال پہلے والا جیکب آباد ہے، کچھ نہیں بدلا۔ کچھ بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے
और बड़ा दुख होता है। मैं ये अभी सोच रहा था, मैं अब अपने भाई से बात कर रहा था, असलम से। मैंने कहा असलम भाई मुझे बताओ कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इनकी क्या उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ किया होता तो शायद आज इतनी उम्मीदें ना होती। इतनी गुर्बत है यहाँ पे, इतनी बेरोजगारी है, इनका कुछ ख्याल किया जाना चाहिए। हुकूमतें सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं होती, हुकूमतें आवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत को हुकूमत कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, वक्त बदल रहा है। अब सिर्फ नारों पे वोट नहीं मिलेगा, नारों पे वोट मिलना भी नहीं चाहिए। नारों पे वोट नहीं मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा। आप देखें वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, भाई वो सिंध में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए। वो नजर नहीं आता यहां पर। आज कराची जाओ तो आपको कचरा नजर आता है, हर तरफ धूल उड़ती नजर आती है, गंद पड़ा हुआ है, शहर गंदा हुआ है। और हमने तो, आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से अमन, जब भी हम आए हैं सबसे पहले हमने अमन ठीक किया मुल्क का, अल्लाह के फजल करम से। 1991 में आए तो सिंध के देहातों में अमन कायम किया और अमन हो गया सिंध के अंदर। लोग रात के 2 बजे भी बिला खौफ सफर करते थे, कोई डर नहीं था, किसी को कोई लुट जाने का खौफ नहीं था। हमारे आने से पहले डाकू राज था यहाँ पे, सिंध में डाकू राज। याद है या नहीं याद है आपको? सिंध हुकूमत से सवाल है कि इन भाइयों बहनों का कुछ तो ख्याल किया होता। अवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत को हुकूमत कहा जाता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज कराची में हर तरफ कचरा नजर आता है। जब भी हम आए हैं सबसे पहले मुल्क का अमन ठीक किया है। हमारे आने से पहले सिंध में डाकू राज था, हमने आकर सबसे पहले कराची को ठीक किया, तहैया करके रखा था कि फर्ज निभाएंगे और कराची का अमन बहाल करेंगे। कराची बदअमनी का शिकार था, इंतशार का शिकार था, दहशतगर्दी का शिकार था, और हमने आके अल्लाह के फजल करम से कराची को ठीक किया। ये हमारा फर्ज है भाई, फर्ज। और अगर वहां पर मुकामी रुकावटें ना पड़ती तो यही कराची जो आज से साल पहले ठीक हो चुका होता। वक्त ज्यादा इसलिए लगा कि वहां मुकामी रुकावटें सामने आई हमारे, लेकिन हमने भी तहैया किया था कि जब तक के कराची के अमन को बहाल नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह अपना ये फर्ज निभाएंगे और अपना ये काम करके जाएंगे। और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह कराची पहले से कितना बेहतर हो चुका है अमन के हवाले से। काश के वहां तरक्की के हवाले से भी पहले से बहुत बेहतर होता। इंशाल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से आमना सामना हमारा हो रहा है। आप बैठे हैं यहाँ पे, आमना सामना मैं खुशी की बात से, खुशी के हवाले से कह रहा हूँ कि आप भी माशाल्लाह उम्मीद की नजरें लगाए हमारी तरफ देख रहे हैं, और मैं भी बड़ी मोहब्बत से आपको देख रहा हूँ, बड़े प्यार से आपको देख रहा हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, अपने नौजवानों के लिए कुछ करूं, अपनी बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं आपको, अभी तो मैं उस तरफ आऊंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के हालात बदले, यहाँ खुशहाली आए, यहाँ बच्चे पढ़े लिखें,
यहाँ बच्चे बेचारे छोटे छोटे बस्तियों में, कोई रात की गर्मी में सोता है, कोई दिन के अंदर जो है वो बेचारा बेसुकून रहता है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, और यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को मुश्किल से मिलता है। ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए और इंशाअल्लाह जल्दी बदलनी चाहिए, इसमें देर भी नहीं लगनी चाहिए। तो मैं अभी कह रहा था, सुन रहा था अपने भाई से कि यहाँ पर ना तो सड़कें हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, टूटी सड़कें हैं। पिछली दफा जब सैलाब आया तो कितनी तबाही हुई यहाँ पर। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, और ये मैं, आपका हक है, मेरा फर्ज है, मैं जैकबाबाद के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहा हूं। 100 करोड़ रुपए का। $100 करोड़ आपकी खिदमत में पेश करने आया हूं, ताकि आपको पीने का साफ पानी मिले, आपकी सड़कें ठीक हो जाएं, आपके हालात बेहतर हो जाएं, आपका ये शहर ये बेहतर हो जाए, और आप भी यहाँ पर सुकून का सांस ले सके। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पैसा, ये रकम जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। और जो चेयरमैन है यहाँ के, चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है, इंशाल्लाह उनके हवाले ये रकम की जाएगी। यानी आपके लोग, मैं माफी चाहता हूं इनकी निगरानी में, जिसके लिए मैं भी इंशाल्लाह अपने 1-2 लोगों को मामूर करूंगा जो इसको खर्च करेंगे आपकी फलाह बहबूद पर, आपकी फलाह बहबूद पर। जिया मूंजा मिठा जैकबाबाद। मेरे भाइयों बहनों, मैं बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहती हैं यहाँ पर अपने लिए, क्या चाहती हैं आप यहाँ पे अपने लिए। मैंने सोचा था कि आपको भाई वो कि अपने बहनों के लिए एक जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का ऐलान कर रहा हूँ आपके लिए। मैं वो उस तरफ आ रहा हूँ अभी 2-4 चीजें आराम से सुनो। मैं ऐसे नहीं आया यहाँ पे, खाली हाथ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आया, माशाअल्लाह जेबें भर के लाया हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जैकबाबाद के शहरियों से मुखातिब होकर कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हकदार लोग जैकबाबाद के लोग हैं। आपको पीने का साफ पानी मिलेगा, शहर बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है इस रकम को बहुत अच्छे तरीके से खर्च किया जाएगा। ये रकम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हवाले की जाएगी। जहां खाली हाथ नहीं आया, जेबें भर के लाया हूँ। वज़ीर आज़म ने जैकबाबाद में पासपोर्ट सेंटर, खवातीन के लिए जदीद वोकेशनल सेंटर कायम करने और गैस की नई लाइनों का ऐलान करते हुए कहा कि जितने देहात का कहेंगे उन्हें बिजली देंगे। जैकबाबाद के लिए भी हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। अगर मुझे कोई कहे, अगर मुझे पूछे कि पाकिस्तान में भाई और भी इलाके हैं, आप जैकबाबाद के लिए इतना बड़ा पैकेज जो है या इतनी बड़ी इमदाद का ऐलान क्यों कर रहे हैं? मेरी नजर में मेरे भाई और बहनों, कोई अगर ये कहता है तो मेरा जवाब उसको ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजर्विंग और हकदार जो लोग हैं वो जैकबाबाद के लोग हैं। अगर किसी दूसरे शहर को, किसी दूसरे जिले को, पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता जिले को अगर 100 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए
तो जैकबाबाद को 200 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, 200। अगर इस्लामाबाद को अगर 200 करोड़ दिया जाना चाहिए तो जैकबाबाद को 400 करोड़ दिया जाना चाहिए, 400। आपका हक है, हक है। इस कदर इतने इस तरह के शहर हों और फिर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, बात बनती नहीं है, ये बात नहीं बनती। जैकबाबाद के रहने वाले भी उतने ही बाइज्जत, उतने ही खुशहाल होने चाहिए जितना कोई इस्लामाबाद का या लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा का रहने वाला है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह सज्जाद अली बुर्की साहब आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा, जल्दी आऊंगा इंशाअल्लाह आपके पास भी मैं, और इंशाअल्लाह मैं पहले भी आ चुका हूं, अब दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह आपके पास। और हम आपको बताना चाहते हैं जो खिदमत इस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत यहाँ पे कर रही है, उस खिदमत में और फिर हमारी खिदमत में क्या फर्क है आपको पता लग जाएगा, आपको पता लगेगा। हम तो अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर मोटरवे भी बना रहे हैं, सिंध में भी बना रहे हैं। हम अल्लाह के फजल व करम से सिंध के अंदर बिजली के कारखाने भी लगा रहे हैं। हम यहाँ पर कोयले से बिजली के कारखाने लगा रहे हैं और वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह, और जल्दी आएगा कि लोड शेडिंग की लानत हमेशा के लिए मुल्क से खत्म हो जाएगी। जैकबाबाद के लिए अभी मेरे भाई असलम अबरो ने कहा कि ट्रांसफार्मर चाहिए, जितने ट्रांसफार्मर चाहिए हाजिर हैं जैकबाबाद के लिए इंशाअल्लाह। ये कहते हैं 100 ट्रांसफार्मर चाहिए, अबरो साहब 100 ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं, ऐलान हो रहा है, बल्कि समझे कि दे दिए गए इंशाअल्लाह। अभी जाऊंगा इस्लामाबाद तो मैं इंशाअल्लाह इसका बाकायदा लिख कर इसकी अप्रूवल दूंगा इंशाअल्लाह। 100 ट्रांसफर मैं आपको दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। यहाँ पर पासको सेंटर का आपने कहा, पासको सेंटर के क़याम का मैं ऐलान करता हूँ और वो इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाजिर किया जाएगा। एक जदीद वोकेशनल सेंटर मैंने ख़वातीन के लिए कहा है, वो इंशाअल्लाह फ्राहम किया जाएगा। और यहाँ पर जो बिजली है देहातों में और शहर में, जितने आप देहात कहेंगे उनको बिजली फ्राहम की जाएगी। और जैकबाबाद के लिए गैस की नई लाइनों को भी मैं ऐलान कर रहा हूँ, गांव के बीच। और दूसरा, यहाँ पर बहुत देखिए लोगों के पास यानी बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर कोई घर में बीमार हो जाता है, कोई खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी लाहक हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, गुर्दों की बीमारी हो जाती है, तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते। बेटा बीमार है, जवान बेटा बीमार है, खुदा ना खास्ता बाप निढाल जाता है, माँ दुख से परेशान रहती है, कुछ नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचनी पड़ती है, घर बार बेचना पड़ता है, लाखों रुपए उधार देने पड़ते हैं जो ज़िंदगी में इंसान अदा भी नहीं कर सकता। मैं अपनी बहनों को भी ये बात कह रहा हूँ, अपनी माँओं को भी और अपने भाइयों को भी, बेटों को भी। बड़ी तकलीफ में इंसान आ जाता है, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है।
तो मैंने ऐसा प्रोग्राम अब शुरू किया है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब उन जिनके पास कोई ताकत नहीं है इलाज कराने के लिए, जेब में पैसे नहीं है, वो इधर उधर देखते रहते हैं कि कहां से कोई रहमत का फरिश्ता आए और हमारा ये मसला हल करे। हमने कहा कि जैकबाबाद में इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल से लोगों को निकालने के लिए हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। आप जाएंगे किसी अस्पताल में, आपका मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त। आप सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, मुफ्त इलाज होगा। मैं इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में यहां टीम रवाना करूंगा जैकबाबाद में, जो आके फौरी तौर पे सर्वे करेगी और हेल्थ कार्ड जो है वो इंशाअल्लाह आपको पेश करेगी। मैं इंशाअल्लाह ये इसका एहतमाम फौरी तौर पे करूंगा और जो मैं कहता हूं उस पर अमल करता हूं, इंशाअल्लाह अमल करके दिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने, मेरी बहनों, आपके सामने असलम साहब ने कहा है कि यहाँ पे परवेज़ अहमद है जो बेचारा ब्लड कैंसर का मरीज़ है, 30 साल की उम्र है। अब बताइए, मैं अभी आपके सामने ये मिसाल आई है, आपके सामने मैं जो कह रहा था सच कह रहा था या नहीं कह रहा था। अब इसको, ये बेचारा जो है ब्लड कैंसर, शायद इसका इलाज हो जाए और ये बच जाए, शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं है, ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। इस परवेज़ अहमद को फौरी तौर पे इंशाअल्लाह मैं इसका इलाज करवाऊंगा। इसका इलाज इंशाअल्लाह मैं कराऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इनको सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का ये शर्फ हासिल हुआ है। आप सबसे मुलाकात हुई है, इस शदीद गर्मी में मुलाकात हुई है और आपने मेरा इंतज़ार किया। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ और मैं जनाब अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इलाही बख्श सुमरो साहब का भी बड़ा ममनून हूँ कि वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। 92 साल की उम्र है, 92 साल की, 92 साल की उम्र है और हमारे साथ हमारे बड़े मुखलिस साथी हैं, मुखलिस। इलाही बख्श सुमरो साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और ये भी माशाल्लाह आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इनका बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें। ये हमारे बड़े नेक दिल साथी हैं। असलम अपड़ो नेक दिल साथी हैं, बुलेदी साहब भी हमारे नेक दिल साथी हैं और इनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जैकबाबाद की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के हालात को दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन उन्हें ये हक देता है कि सुबह सिंध के लोगों को कुदरती गैस फराहम करें और उसके बाद अगर इजाफी गैस हो तो दीगर सूबों इनके हिस्से के मुताबिक दी जाए। उन्होंने ये बात आज अपने आबाई गांव वहार शरीफ में अपने वालिद और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह की 10वीं बरसी के मौके पर मीडिया से बातें करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नाम नहाद सियासतदान, पार्लियामेंट्रीन और वुज़रा ये तासीर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला दीगर सूबों को गैस की फराहमी बंद नहीं कर सकते। मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि वो आइन का मुताला कर ले जिसमें उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि पहले सिंध के लोगों की गैस की ज़रूरियात पूरी होंगी, फिर दीगर सूबों की। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। माता सभी जो ते दिल से शुक्रगुजार आहियां तो अज 14 अप्रैल 2017 मुझे वालिद साहब जी
ॾही वरसी ते हिन उनजी ईसाले सवाब लाइ दुआ लाइ तव्हां सभिनी शिरकत कई आहे। 2007 मुंहिंजे पंहिंजे लाइ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ तमामु ॾुखियो साल हो। 2007 में असांजी शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो, असां खां जुदा कयो वियो। उन साल उन खां अॻु में मुंहिंजे वालिद साहब हिन दुनिया खां हली वियो। ऐं मूंखे इहो फ़ख़ुरु आहे त अॼु 10 सालनि खां पोइ जंहिं जॻह ते मुंहिंजो वालिद साहब हो, जिते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनखे उन ते एतमाद करे उनखे सिंध जो वॾो वज़ीर कयो। अॼु आऊं बि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्हनि मूं ते एतमाद कयो ऐं मूंखे हिन सूबे जो वॾो वज़ीर कयो आहे। मां तव्हां सभिनी सां गॾु हिते लीडरशिप बि मौजूदु आहे, सिंध जो सदर मोहतरम भी मौजूदु आहे। इहो वचन थो कयां, ताज़ो ॻाल्हियूं थियनि पियूं त सिंध जे हक़नि लाइ इंशाअल्लाह ताला जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप मूं ते एतमाद कयो आहे, हिन सिंध जे माण्हुनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते एतमाद कयो आहे सिंध जे हक़नि लाइ। ऐं का बि कंहिं बि शइ खां न घबराईंदुसि। ताज़ो हिकिड़ो मसइलो हले पियो, मां थोड़ो ज़िक्र करे छॾियां, ॿिया मुक़रर कंदा। अभी एक बात हुई है, जो चीज पूरे सिंध में, पाकिस्तान में तो है मसला लेकिन सिंध में खास तौर पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, जो नवाज शरीफ की हुकूमत सजा के तौर पे सिंध के अवाम को दे रही है, वो सजा दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करने के लिए। वो सजा देना चाह रही है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पार्टी को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को। मियां नवाज शरीफ जैकबाद भी आए थे, मुझे हैरत हुई, मैंने उधर देखा जो उनका अपना सदर था, वो भी ये कह रहा था कि जी 20 घंटे की लोड शेडिंग है, रहम करें सिंध के लोगों पे। उसी के लिए मैंने, मुझे कहा गया उधर, कहा जी लड़कारा है। मैंने नहीं, सिंध के अवाम ने लड़कारा है आपको। सिंध के अवाम ने आपको लड़कारा है। और ये उधर बात की गई कि जी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सिंध के अवाम की बात मैंने की है उधर। और जो मैंने उस दिन कल बात की थी, एक पावर प्लांट, उसको अब सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिजली पैदा होगी तो वो लोगों के काम आएगी ना, लोड शेडिंग कुछ कम होगी जो आपने जुल्म किया हुआ है। सिंध उस पावर प्लांट के ऊपर कहते हैं जी ये किसी प्राइवेट कंपनी का है जी। सिंध सरकार उसकी 49% ओनर है और बाकी 51% एक ओपन बिडिंग में इशारे दिए जा रहे हैं कि किसी कंपनी का है, जिसकी तरफ इशारे दे रहे हैं। मैं ये हल्फिया आपसे कहता हूं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये पावर प्लांट एक ओपन बिडिंग के बाद एक कंपनी ने हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया था। पावर प्लांट तैयार है, ट्रांसमिशन लाइन तैयार है, गैस नहीं दे रहे, कहते हैं जी 1 अरब रुपया दो। 1 अरब रुपया तो हम देंगे, लेकिन पहले उन्होंने साइन करना है उस एग्रीमेंट पे, जो 4 महीने से नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा आप लोगों की तरफ से मरकजी हुकूमत को कहता हूं कि जी जल्द से जल्द, मैंने टाइम दिया है, नहीं तो आप लोगों के साथ, इसलिए कि जब पावर पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, उससे लोड शेडिंग कम होगी। इसके अलावा तकरीबन 200 मेगावाट के और पावर प्लांट हैं जिनको उन्होंने बंद किया हुआ है गैस ना देके, और वो कोर्ट के सहारा ले रहे हैं उस सिलसिले में। उसके बारे में भी मैं आगाही दूंगा मंडे को। और ये अगर
300 मेगावाट भर जाती है सिंध में बिजली आना, तो लोड शेडिंग में 3 से 4 घंटे कमी आएगी। और ये नहीं चाहते कि सिंध के अवाम सुख से बैठे, चैन से बैठे। मैं इनको आपकी तरफ से ललकार रहा हूं, दोबारा आपकी तरफ से कह रहा हूं कि अगर उन्होंने सिंध के साथ ऐसा सलूक किया तो हम सब सरापा एहतजाज होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेना जानते हैं और हम अपना हक लेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वो मुल्क में बिजली की किल्लत को कम करने के लिए कोशां है। सिंध हुकूमत ने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है और नूरियाबाद से कराची तक ट्रांसमिशन लाइन भी बिछा दी गई है, मगर सुई सुदरन गैस कंपनी चंद वज़रा जो कि नहीं चाहते कि मुल्क से अंधेरों का खात्मा हो के कहने में आकर गैस की फराहमी में रुकावटें डाल रहे हैं। मगर अब बहुत हो चुका, अब हम सिंध हुकूमत के साथ इस तरह की हरकतें मजीद नहीं होने देंगे। SSGC के बैंक गारंटी की फराहमी के मुतालिक बयान का हवाला देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ये गारंटियां उस वक्त जमा की जाती हैं जब मुआहदे पर दस्तखत होते हैं। उन्होंने SSGC को मशवरा दिया कि वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस मुल्क के लोग ये तमाम बातें अच्छी तरह से जानते हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लिहाजा वो जैकबाबाद समेत सूबे के किसी भी इलाके का दौरा कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाजन काम करना बंद कर दिया और सरकारी प्रोटोकॉल भी वापस कर दिया। उन्होंने सेक्रेटरीट को हिदायत की कि कोई सरकारी फाइल मुझ तक ना लाया जाए, मैं अब चेयरमैन नहीं हूँ। सेनेट की कार्रवाई के दौरान आज रज़ा रब्बानी वज़रा की अदम मौजूदगी और हुकूमत की तरफ से जवाब न मिलने पर बरहम हो गए और कहा कि हुकूमत और वज़रा सेनेट को अहमियत नहीं देते। हुकूमत को इनसे किसी बात पर रंजिश है, अगर वो ऐवान की अथॉरिटी बरकरार नहीं रख सकते तो ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सेनेट को आईनी किरदार से मरहूम कर रही है, ऐवान का वक़ार और बरकरार नहीं रख सकता तो ओहदे का हक नहीं रखता, उसी वक्त इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन सेनेट ने कल से शुरू होने वाला दौरा ईरान भी मंसूख कर दिया है। सेनेट की तारीख में पहली मर्तबा रूल्स 23 के तहत सेनेट की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। आइंदा इजलास की तारीख चेयरमैन सेनेट देंगे। मुस्लिम लीग नून ANP MKM के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा है कि रज़ा रब्बानी की वजह से सेनेट का वक़ार बढ़ा है। मीडिया से गुफ्तगू राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि रज़ा रब्बानी की नाराजगी बेजा है, उनसे कहा कि सफ़र जारी रखेंगे, जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि आज बे वक्त दोनों ऐवानों में इजलास बुलाए गए, इसलिए कुछ वज़रा कौमी असेंबली और कुछ सेनेट में थे, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हुई। राजा ज़फ़रुल हक का कहना था कि मैंने रज़ा रब्बानी से मुलाकात में उन्हें कहा कि आपने 2 साल में बहुत से इस्लाहात की हैं, वो मेरे समझाने पर सरकारी गाड़ी में घर रवाना हुए। MKM के ताहिर मुशीदी ने कहा है कि वज़रा करप्शन में लगे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अगर रज़ा रब्बानी ने इस्तीफा दिया तो तमाम अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ANP के शाही सैयद और जाहिद खान ने रज़ा रब्बानी के इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया है और कहा कि चेयरमैन सेनेट ने जो कुछ किया वो अच्छी बात और दुरुस्त काम है। जाहिद खान का मजीद कहना था कि पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत अवाम को जवाबदेह होती है, हुकूमत को जमहूरी रवैये का पता ही नहीं। सेनेट इजलास में सवालों के जवाब न मिलने और वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी के खिलाफ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने इजलास गैर मुबैना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान मुस्ताफी होने के धमकी देते हुए कहा कि अगर वो ऐवान का वक़ार और अथॉरिटी बरकरार नहीं रख सकते तो ओहदे पर बैठने का हक नहीं। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने वक्फा सवालात के दौरान सवाल किया कि ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को रिटायरमेंट पर क्या पेंशन और मराद दी जाती हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा की जानिब से जवाब नहीं आया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हुकूमत एहतसाब के लिए तैयार नहीं। ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, सियासतदानों के तो कपड़े उतारे जाते हैं, प्रेस में मौजूद हर पैसे का जवाब मांगा जाता है।
رضا ربانی نے سوال کیا کہ کیا سول اور ملٹری بیوروکریسی مقدس گائے ہے کہ ان کی تفصیلات ایوان میں نہ آئے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے، وفاق کی صورتحال ٹھیک نہیں، لگ رہا ہے کہ حکومت سینٹ کے آئینی کردار کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان کا وقار اور اس کی آئینی حیثیت برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن لگتا ہے حکومت کو مجھ سے کوئی رنجش ہے اور وہ یہ رنجش سینٹ کو بے وقتہ کر کے نکال رہی ہے۔ ارکان چاہیں تو ابھی استعفے کے لیے تیار ہوں۔ چیئرمین سینٹ نے بطور احتجاجاً سینٹ کی کارروائی 35 منٹ کے لیے ملتوی کر دی۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو سینیٹر عتیق شیخ کی تحریک التوی کے منظوری سے متعلق جواب دینے کے لیے وزراء ایک بار پھر موجود نہ تھے۔ اس پر اپوزیشن ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ حکومتی رکن نثار محمد بھی ان کے ساتھ واک آؤٹ کر گئے۔ اس کے بعد میاں رضا ربانی نے اجلاس غیر مبینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ حقیقی واقعے کے گرد گھومتی ایکشن اور سسپینس سے بھرپور برٹش فلم 6 Days کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ ٹو فریسر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی 1980 میں پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں لندن میں واقع ایرانی ایمبیسی میں اسلحہ بردار مجرم گھس کر وہاں موجود عملے کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ان یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے اور اسپیشل ایئر سروس کے جوانوں کو اس مشن پر روانہ کیا جاتا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں ٹم بگوٹ، ایبے کورنش، مارک اسٹرانگ، مارٹن شار، جیمی بیلٹ، نوکلس بولٹن اور رونن ویبریٹ شامل ہیں۔ دیگر اداکار شامل ہیں نٹ بولٹن اور ایان ڈونس کی مشترکہ پروڈیوس کردہ یہ ایکشن سے بھرپور فلم 4 اگست کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کو مؤخر کرتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس ختم کرنے کا عدلیہ دیا تو ایم کے ایم اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے جمعے کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر نثار خورو نے وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس کو اگلے اجلاس تک مؤخر کرنے کی درخواست کی، جس پر ایم کے ایم ارکان نے اعتراض کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ ایوان نے کثرت رائے سے وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس مؤخر کر دیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں ایم کے ایم کے عامر معین پیرزادہ نے کہا ہے کہ ایسے اجلاس میں شرکت کرنا بیکار ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان نے ایوان کو پیپلز پارٹی کے 2 نمبر اسمبلی قرار دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ نے کہا تھا کہ اسمبلی کو 2 نمبر کہنے پر پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے۔ اپوزیشن جہاں بھی اجلاس بلائے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مختصر کارروائی کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے اجلاس پیر کے دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے کہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ سندھ حکومت اس سے کیوں ناراض ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک میری مرضی کے بغیر لگا دیا گیا، اصل مسئلہ اختیارات کا ہے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی جی سندھ ہوں، کوئی کلرک نہیں۔ کراچی میں ٹریفک سب سے زیادہ ہے اور محکمے کا ڈی آئی جی میری مرضی کے بغیر لگا دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سندھ پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میرٹ پر بھرتیاں کی۔ بھارت نے را ایجنٹ کلبھوشن یادو کے خلاف چارج شیٹ اور فیصلے کی تفصیل مانگ لی۔ سیکریٹری خارجہ نے ملاقات میں بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباوالے نے قونصل رسائی کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان کی سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بھارتی ہائی کمشنر نے کہا کہ بھارت کلبھوشن یادو کی سزا کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ میں ہونے والے ملاقات میں بھارتی ہائی کمشنر نے اپنی حکومت کا موقف پیش کیا اور اپنے مطالبات تہمینہ جنجوعہ کے سامنے پیش کیے۔